खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है। नमस्कार, एक बार आपका फिर इस चैनल पे स्वागत है। वेलकम। Most of you would be wondering as to why this short video clip of anti-tobacco campaign. And by the way, do you know that Indian Medical Association is demanding a blanket ban on smoking scenes in movies? Now, if tobacco is injurious to your health, अगर तंबाकू आपके सेहत के लिए हानिकारक है, if tobacco makes you pay with your life, so does the sugar. शुगर या चीनी या ग्लूकोज भी आपके सेहत के लिए उतना ही या उससे ज्यादा हानिकारक है। एंड लेट मी यूज अ बेटर नेम फॉर शुगर दैट इज मोर रेलिवेंट, एंड दैट इज ग्लूकोज। एंड व्हाट इज दिस ग्लूकोज? ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर दैट कार्बोहाइड्रेट और कार्ब्स ब्रेक डाउन टू। नो मैटर हाउ सिंपल और स्मॉल और हाउ कॉम्प्लेक्स और बिग दे आर, ultimately all carbohydrates, they have carbon, hydrogen and oxygen atoms, and they all break down into glucose in your body. Now, if all carbohydrates, they break down into glucose in your body, and excess glucose leads to the onset of major lifestyle ailments, and not just obesity and diabetes. If excess glucose is a major cause for severe ailments like Alzheimer's and cancer, तो मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है. Why not a statutory warning against it? Just like the same way you have for tobacco. आप निकालिए ना इसके लिए भी एक statutory warning नीचे. I mean, it may sound funny, but just imagine that आप मूवी हॉल में बैठे हैं या आप कोई सीरियल देख रहे हैं और उसमें एक्टर जो है कोई, the actor is trying to eat a high carb or a high glucose or a high sugar food, and नीचे statutory warning, eating heavy carbs or intake of high glucose is injurious to your health. And in spite of knowing that excess sugars will ruin your life, ये पता होने के बावजूद we are still indulging in it day in and day out, and that is because of the perception created. एक ऐसी धारणा बनाई गई है पिछले 40-50 सालों से, in last 4-5 decades. And what is that perception? That we must eat and eat carbs in everything. So when we have to justify, we will justify dal and chawal or idli and sambar. And when required to justify the logic of let's enjoy our lives, मतलब एक ही जिंदगी मिली है, चलो ऐश करते हैं, जो मर्जी खाते हैं. So when we want to justify this logic, then we start justifying street foods, junk food, rusk, biscuits, sweets, and glucose in every form. Now, unfortunately, we all have lived through this period of last 4-5 decades, and we still are living through this period of complete hijacking of our nutrition values by the carbohydrate-loaded foods. And glucose is infiltrating or intruding into our lives in all forms. वो हर रास्ते से घुस रहा है आपके शरीर के अंदर. नाउ यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, ये सवाल तो आपने पूछना अपने आप से कि क्या ये सही है, क्या ये स्वाभाविक है? इज इट नॉर्मल टू फर्स्टली ईट रॉन्ग एंड ruin your health, and once your health biomarkers they cross the threshold levels, and what are the health biomarkers? आपका पल्स, आपका बीपी, आपका ब्लड ग्लूकोज, आपके लिपिड्स, आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन, मतलब जब ये खराब हो जाए, then you take some drugs, take some medicines, and you sort of suppress them, क्योंकि आपका बायोमार्कर आपके थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर चला गया. अब आप उसको दवाइयों के साथ उसको दबा रहे हैं. दबाने के बाद आपके दिमाग में there is a false notion that everything is hunky dory. मेरे को सर कुछ नहीं हुआ है, मैं बस पिछले 5-10 साल से बीपी की दवाइयां खाता हूं. आपको कुछ नहीं हुआ है. So we are trying to get into a very wrong vicious circle. And what is this vicious circle? I will explain it with this diagram. So this vicious circle is, firstly, you eat wrong. आपका पहला स्टेप गलत. You eat wrong. Then you take drugs or take medicines,
and sort of you suppress your health biomarkers, जो कि मैंने आपको अभी बताया, and you create a false sense of security in your mind, and then you continue to eat wrong because आपको लगता है कि मेरे शरीर में सब कुछ सही है, पर आप ये भूल जाते हैं कि आप दवाइयों के साथ उस चीज को दबा रहे हैं. Then you further spoil your health. Then you increase your drugs because जैसे आपका हेल्थ बायोमार्कर्स और खराब होंगे तो ऑब्वियसली कोई भी फिजिशियन या डॉक्टर आपके ड्रग्स मेडिसिन बढ़ाएंगे या उसका डोसेज बढ़ाएंगे. एंड देन यू गेट इनटू दिस डेडली लूप, दिस डेडली सर्कल दैट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड इन दिस डायग्राम. एंड सो व्हाट डू यू डू? यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस. इसमें से बाहर निकलना आप, और बाहर निकलने का सबसे आसान और सबसे सही तरीका है दैट ईट करेक्ट. ईट करेक्ट, तो यह सवाल आएगा कि भाई ईट करेक्ट मतलब क्या? अभी तक हम लोग क्या कुछ गलत खा रहे थे? What was wrong the way we have been eating? We all are trying to eat as much correct as possible, but unfortunately that's not yielding the right results. There is definitely something wrong happening in our intake. और अगर कुछ गलत नहीं हो रहा होता, अगर हम लोग सब सही खा रहे होते, पिछले जो मैंने आपको ये पीरियड बताया, पिछले 30, 40, 50 सालों से अगर हम सही खा रहे होते, then why is it, my friends, that the diabetes map of India is getting bad to worse over last 3 decades? Why? As per the World Health Organization data of 2017, India ranks second after China in prevalence and death due to diabetes and obesity. Why is it that 73% of urban Indians are overweight and 50% urban Indians are obese? Why is an average urban Indian healthy at 26 and by the time he is 38, he is obese? And lastly, why is it that we have to proudly accept that we are the second highest after China in obesity amongst children? I mean, come on, these are not my slides. ये slides मैंने बैठ के नहीं बनाए. I have just taken it from the net. These slides are of World Health Organization. These slides are of the Ministry of Health and Family Welfare. तो आप लोगों ने वो CID सीरियल देखा है जहां पे ACP प्रद्युमन दया को बोलते हैं, दया कुछ तो गड़बड़ है. So definitely, when you ask this question कि हम लोग अब तक गलत क्या खा रहे हैं, क्या हम लोग सब कुछ सही नहीं खा रहे हैं? अगर सब कुछ सही खा रहे होते, so we would not have been having all these issues. कुछ तो गड़बड़ है. और गड़बड़ यह है कि पिछले 30-40 सालों में जो हमारा ये हेल्थ ग्राफ का पतन हुआ है, हमने इसका ब्लेम अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल को दिया है कि यार आजकल जो है हम लोग ना लिफ्ट से ऊपर जाते हैं, सीढ़ी से ऊपर नहीं जाते हैं. ठीक है, आजकल हम लोग एसी के अंदर घूमते हैं, एसी दफ्तरों में काम करते हैं, इसीलिए हम लोग मोटे हो रहे हैं, इसीलिए हमें लाइफस्टाइल एलिमेंट्स हो रहे हैं. बट दैट इज नॉट द होल स्टोरी. Why are we giving 10 on 10 to our dietary habits which have evolved in last 30-40 years? उस डाइटरी हैबिट से जो हमारा पतन हो रहा है, हमें वो क्यों नहीं दिखता है? हम क्यों आंखों में पट्टी बांध रहे हैं? और हम सिर्फ ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको एसी दफ्तरों से निकलकर आपको जिम में दौड़ना है, आपको रोज सुबह दौड़ना ही दौड़ना है. दौड़ना है, एक्टिविटी करनी है, बट व्हाट अबाउट योर डाइट? व्हाई आर वी नॉट पेइंग अटेंशन टू इट? आई एम सॉरी, बट द सो कॉल्ड पिरामिड ऑफ बैलेंस डाइट, और ये जो बैलेंस डाइट का पिरामिड आप देख रहे हैं, नो यू ऑल हैव ग्रोन थ्रू इट. आपने क्लास 8th या 9th अपने साइंस के किताबों में आपने ये पिरामिड देखा होगा विथ माइनर मॉडिफिकेशंस. बट द सैड थिंग इज दैट दिस पिरामिड ऑफ बैलेंस डाइट हैज बीन टेकन फॉर अ टॉस इन दीज लास्ट 3-4 decades. एंड हाउ? विद द इंट्रूजन एंड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन योर लाइफ्स थ्रू ऑल पॉसिबल फूड सोर्सेज. आप देखते रहिए, मतलब सुबह से लेकर रात तक हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं उसके अंदर ग्लूकोज किसी न किसी रूप में आपके शरीर के अंदर जा रहा है. और ये जो पिरामिड का बेस है, इट हैज बिकम टू वाइड फॉर कंफर्ट. बहुत ज्यादा चौड़ा हो गया. अब ये पिरामिड रहा ही नहीं, ऐसा बन गया, ये ऐसा होना चाहिए था. इट हैज बिकम लाइक दिस. नीचे से चौड़ा होते जा रहा है, हम खाते जा रहे हैं ग्लूकोज इन वॉट एवर फॉर्म. सो फॉरगेट द पिरामिड ऑफ बैलेंस डाइट. मोस्ट ऑफ अस हैव स्टार्टेड ईटिंग a carb heavy, not only carb heavy, a carb very, very heavy diet. That is the state right now. And the sad part is that
वी हैव एक्सेप्टेड दिस टू बी द न्यू नॉर्मल। अरे सब ठीक तो है, दिस इज द नॉर्मल भाई, ऐसे ही खाते हैं। नाउ कार्ब्स एंड ग्लूकोज आर एवरीवेयर in every food, less oils and fats, and therefore it becomes very important that we take these carbs from good and healthy sources, otherwise things will go out of control, and that is what has happened. So when it was about rice and roti, dal and sabji, mithai and milk, khichdi and curry, or idli and payasam, it was all fine. Yes, you are correct when you think that आपके पिछला जनरेशन या आपके दादाजी या आपके परदादाजी वो ये सब खाते थे। यस, इट वाज ऑल फाइन, योर बॉडी कुड डील विथ ऑल दिस ग्लूकोज, तब कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट द स्टेडी चेंज इन आवर ईटिंग हैबिट्स इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, जिसके बारे में मैं बार बार बात कर रहा हूं, दैट हैज मेस्ड इट अप बिग टाइम। तो अगर आप सुबह से शुरू हो जाएं, राइट फ्रॉम मॉर्निंग, रस्क, कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड, बन, डोनट, नूडल्स, ओट्स, pastas, biscuits, namkeens, chips, jam, jellies, honey, samosa, pizza, rolls, wraps, popcorns, golgappas, chaat, patties, pastries, street food, energy drinks, juices, मतलब it is mind boggling, और अभी तो मैं नमकीन्स के ब्रेकडाउन नहीं कर रहा हूं और बिस्किट्स के ब्रेकडाउन नहीं कर रहा हूं कि मीठा बिस्किट और नमकीन बिस्किट, फिर नमकीन बिस्किट के अंदर भी 100 तरह के बिस्किट और मीठे बिस्किट के अंदर 150 टाइप के बिस्किट्स, मैं तो उस पर जा ही नहीं रहा हूं। एंड एज आई सेड, द प्रॉब्लम इज ऑल्सो ऑफ परसेप्शन मैनेजमेंट। किस तरह की एक धारणा बनाई जा रही है। आप लोग टीवी में, आप लोग रोज टीवी देखते हैं, आप लोग रोज घूमने जाते हैं, आप लोग एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, या तो टीवी में या तो बिलबोर्ड्स में। कभी आपने देखा है कोई सब्जी का ऐड? सब्जी में भी कार्बोहाइड्रेट है, फल में भी कार्बोहाइड्रेट है। आपने कभी सब्जी का एडवर्टाइजमेंट आते हुए नहीं देखा होगा। आपने अंडे का एक आता था, वो भी आजकल आना बंद हो गया है। आपको अंडे का एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा, आपको दही का उतना एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा, आपको फलों का एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा, बिकॉज इट जस्ट डज नॉट सूट द इंडस्ट्री। So they will never show you advertisements of these things. You will not even see advertisements of, say, दाल या legumes, राजमा, ये वाला राजमा खाइए, राजमे के अंदर ये है और इससे आपको ये आपके नहीं आएगा ये ऐड। बट you will be bored to see the n number of ads of biscuits and cereals and snacks and chips and namkeens, all these heavy products. And the sad part is that जब ये एड्स को दिखाया जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, 2-3 कैची वर्ड्स पकड़ लेते हैं जो आपके हेल्थ और वेलनेस के साथ जुड़ा हुआ है। वर्ड्स लाइक स्ट्रेंथ, एनर्जी, वाइटैलिटी, मेटाबॉलिज्म, और वो ऐसे वर्ड्स को लेकर ना वो अपने एडवर्टाइजमेंट में चिपका देते हैं। सो अगर वो अपना कॉर्नफ्लेक्स को किसी एक रूप में, मॉर्निंग सीरियल कॉर्नफ्लेक्स को आपको खिलाना चाहते हैं, दे विल ऐड फ्यू एलिमेंट्स एंड पुट अ फोटोग्राफ ऑफ एन एलिमेंट विथ मसल्स, एंड उस पर बड़ा बड़ा लिख देंगे आयरन शक्ति, और आपको लगेगा कि मैं सुबह 5 किलोमीटर टहल के आया हूं, वॉक करके आया हूं, और अब मैं जब ये आयरन शक्ति वाला कॉर्नफ्लेक्स खाऊंगा तो मेरे शरीर में आयरन नहीं। आई एम सॉरी, हम लोग पीछे न्यूट्रिशनल वैल्यूज पढ़ना भूल गए हैं। वी जस्ट गो एंड सी द एडवर्टाइजमेंट एंड पिक अप द थिंग फ्रॉम द शेल्फ कि भैया वो देना, वो वाला नहीं आया, ये वाला फ्लेवर आया है। सो वी आर जस्ट फॉलिंग प्रे टू रॉन्ग थिंग्स, एंड जो हमको एक्चुअली में चाहिए था वो था आयरन, जो आपके दिमाग में बैठा हुआ था, पर हम लोग खा बैठे हैं इतना और इतना और इतना सारा ग्लूकोज उस आयरन शक्ति के नाम पर। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल दैट आई गेव। सो फाइनली इन द एंड, लेट मी डू अ क्विक फैक्ट चेक ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। मैं आप लोगों के जहन में कार्बोहाइड्रेट संबंधित 3 बातें लाना चाहता हूं। पहला, कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट। जी हां, कार्बोहाइड्रेट एसेंशियल न्यूट्रिएंट के कैटेगरी में नहीं आता है, वो आपके शरीर के लिए जरूरी नहीं है। एंड व्हाट इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट? एसेंशियल न्यूट्रिएंट इज व्हाट योर बॉडी कैन नॉट मेक, और आपको वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट बाहर से चाहिए, आपको खाने के थ्रू चाहिए। उदाहरण के तौर पे, व्हेन वी ईट प्रोटीन इट ब्रेक्स डाउन टू अमीनो एसिड्स, बट 9 ऐसे अमीनो एसिड है जो आपका शरीर नहीं बना सकता और आपको डाइट के थ्रू लेना है, उसको एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। उसी प्रकार से फैटी एसिड्स,
हम लोग फैट खाते हैं, कुछ फैट हमारे बॉडी में अपने आप सिंथेसाइज होते हैं, बट दो ऐसे फैट हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, जो कि हमारा शरीर नहीं बना पाता, और इसीलिए इसको हम लोग एसेंशियल फैटी एसिड्स बोलते हैं। बट ग्लूकोज के लिए या कार्बोहाइड्रेट्स के लिए देयर इज नो सच टर्म, देयर इज नथिंग कॉल्ड एसेंशियल ग्लूकोज और एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स। So don't get unnecessarily worried, of getting into a low carbohydrate or a low glucose diet. यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये essential nutrient है ही नहीं। The second fact check is that carbohydrates are cheap. They are low cost, सस्ता है carbohydrate, and they fill up your stomach. और इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको, वो है पिज्जा का। अब आप लोग सब पिज्जा खाते हैं, बट जब आप पिज्जा बेस बाहर अलग से खरीदने जाएंगे, सो इट विल कॉस्ट यू जस्ट 15 और 20 रुपीज। दैट इज हाउ चीप कार्बोहाइड्रेट इज। आपको 15 या 20 रुपए में आपके शरीर का भट्ठा बिठाने के लिए वो नीचे का मैदे का बेस मिल जाएगा। बट द मोमेंट यू स्टार्ट पुटिंग स्प्रेड्स एंड टॉपिंग्स ओवर इट, इन वॉट एवर फॉर्म, आप वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन जो भी ऊपर डाल रहे हैं पिज्जा के ऊपर, the cost of the pizza goes up by 10 times, 15 times, sometimes even 20 times. That's the problem with carbohydrates. Similarly, you take example of, say, chana bhatura versus paneer tikka. Now, you and I, we both have gone to many such restaurants जहां पे ये दोनों मिलता है। तो आप चना भटूरा, या मैंने उदाहरण लिया, आप पाव भाजी ले लें, आप बन समोसा ले लें, जो मर्जी, what is the cost? 60, 70, 80, at the most 90 rupees. So you go and you eat a cheap but a very, very carb heavy and I'll come to the last part, a bad carbohydrate entering into your body for just less than 100 rupees. But the moment in that same restaurant you order for a paneer tikka, which has got probably 4 cubes of paneer, 3 pieces of shimla mirch and 3 pieces of tomato with some chutney, that plate costs more than 185 rupees in that same restaurant, and in some restaurants it goes up to 250 rupees. So that is the problem. Carbohydrates are very, very cheap. It is low cost to the person who is making it, and that's why he gives you for cheap. And that is why carbohydrates, if you see the street foods all across the world, from chapati to the street foods of Paris, you will find only carbs, simple carbs, and absolutely, glucose loaded carbs getting into your body and spoiling your health. Similarly, when you look at how food is being managed or controlled in large kitchens, जिसको हम लंगर भी बोलते हैं, and it could be फौज का लंगर, it could be langar of police lines, it could be langar of any of the paramilitary forces, it could be langar of an ashram, it could be kitchen of an educational institution. और अगर आपके बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं या हॉस्टल में रहते हैं, you all know how food is being managed there. When the child is hungry, when the student is hungry, all that he or she gets is extra carbohydrates in form of rice, wheat, dal, etc. Everything else is rationed. जिस भी खाने में carbs low हैं and the amount of proteins and fats and vitamins and other minerals are more, like chicken, fish, eggs, dahi, curd, your vegetables, paneer, all these things are rationed. A child or a student or a फौजी जवान cannot get that extra. उसी का rationing करके रखा हुआ है, और अगर भूख लगी है तो आप दाल, चावल, रोटी जितना मर्जी खाना है खाओ. That's the issue. And the third fact check, and which is the most important fact check for carbohydrates, is that it is hollow or empty. Hollow calories, empty calories. And what do I mean by that? I have been always telling that quality is supreme over quantity. चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे आप खाना खा रहे हो. और जब आप ग्लूकोज लोडेड हाई कार्बोहाइड्रेट खाना खाते हैं, उसके अंदर कैलोरीज कुछ भी हो जिससे कि आपको एनर्जी मिले, और भगवान के लिए प्लीज डोंट फॉल प्रे टू अ टेम्पररी हाई लेवल ऑफ एनर्जी दैट यू गेट. वो एनर्जी यूं ऊपर जाता है जब आप आइसक्रीम खाते हैं या पेस्ट्री खाते हैं या कुछ और समोसा खाते हैं, तो आपका एनर्जी लेवल जाता है, फिर ठग से नीचे भी आता है. सो डोंट फॉल प्रे टू दैट. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इट मे हैव एक्स अमाउंट ऑफ कैलोरीज
which is required by your body, as energy. But what is the nutritional value? It is absolutely hollow. खोखला है बिल्कुल. So I often compare high carb food, and I give the logic of alcohol. अब you don't justify कि मैं 2 पैग विस्की पीता हूं ताकि मेरे को 150 कैलोरी एनर्जी मिल जाए. Similarly, please don't justify eating any carb loaded food कि भाई इसमें से मेरे को इतना कैलोरी मिल रहा है, because those calories have got no value. They are absolutely hollow. And with this hollow calorie logic, there is an interesting study, which says that with intake of added sugars in your diet, you stand a risk of nutritional deficiency of vitamin A, C, vitamin E and magnesium. और हम जो इन vitamins और magnesium की बात कर रहे हैं, they are required for your cardiovascular health, for example. आजकल कोविड पैंडेमिक पूरे विश्व में छाया हुआ है. वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट इंप्रूविंग इम्यूनिटी इन आवर बॉडी, एंड हियर इन वी आर स्पॉइलिंग आवर इम्यूनिटी ओवर द पास्ट 3-4 decades by eating high sugar or high carb diet. In the end, I just want to say that it's high time, it's high time that we realize that we eat for our health and happiness. While obviously we want our food to be tasty and delicious, and we also want our food to give us energy, we cannot neglect the nutritional value coming from that food which enters into our body. We cannot neglect that. So yes, count your carbs and glucose. Don't become a victim of it. Pick up the right source. Healthy, tasty and nutritious food is available around you. है, आप ही के घर में है, आप ही के घर के बाहर बाजार में है. I know it takes time to procure it, to make it, but believe me, eating healthy, nutritious food is worth its value in gold. Keep smiling, be happy. Cheers.